एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ये एक स्लम एरिया की क्लासरूम की स्कूल के बारे में बताई गई पोएम है। स्टीफन स्पेंडर 1909 to 1995 was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and the autobiography World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities. स्टीफन स्पेंडर 1909 में पैदा हुए थे और 1995 में उनका देहांत हुआ। वो एक इंग्लिश पोएट थे और ऐसे राइटर थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने बीच में ही डिग्री लेने से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बर्लिन चली गए 1930 में। वहाँ उन्होंने अपना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट उनका आया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो सोशलिस्ट बने और साथ ही साथ पैसिफिस्ट बने, जो समाज में होने वाली इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ़ लड़ते हैं। उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं, जिनमें से उनकी पोएम्स बहुत फेमस हैं, जैसे कि पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग और द क्रिएटिव एलिमेंट जैसी, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी जैसी कि आत्मकथा भी उनकी लिखी हुई बहुत फेमस है, दैट इज़ वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। और ये पोएम जो है ये है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब far far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with red eyes, the stunned, unlucky air of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unknotted, sweet and young, his eyes live in a dream. A squirrel games in the tree room other than this. On star screen walls to nation, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, bell flowery Tyrolese valley open-handed map, awarded the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world where all their futures painted with a fog. A narrow street sealed it with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. Surely Shakespeare is the wicked, the map a bad example, with ships and sun love tempting them to steal. For lights and that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slag heap these children, where skin pipe peeped through by bones and spectacles to steal, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slum as big as tomb. Unless governor inspector visited, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break open till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language in the sun। यहाँ पर उन्होंने बताया है एक स्लम एरिया की एक स्कूल के बारे में। ये स्कूल जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, गंदी है, उसकी दीवारों पे गंदी पेंटिंग्स हैं। वहाँ कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर स्लम एरियाज़ के पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन वो सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ाई को लेके उत्सुक नहीं हैं। उनके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं हैं। वो स्कूल जिसे स्कूल का नाम दिया गया है वो प्रॉपर स्कूल की तरह भी नहीं है। लोगों के द्वारा दान किए गए पोस्टर्स पूरी दीवारों पर लगे हुए हैं, जिनमें से एक पोस्टर वहाँ पर शेक्सपियर का लगा हुआ है। शेक्सपियर के उस पोस्टर को देखते हुए पोएट कहते हैं कि वो मानो किसी सूरज की तरह चमक रहे हों। उनका सर जो कि बोल्ड है, यानी कि उनके सर पे बाल नहीं है,
उनका वो सर जैसे सूरज की सिम्बलाइज कर रहा है सूरज को। वहीं दूसरा एक और मैप है जिसके अंदर चर्च और फ्लावर्स और सारी चीज़ों का ड्रॉ किया हुआ है। उससे उन्हें कुदरत और बाहर की दुनिया की खुशियों के बारे में जैसे वो सिम्बलाइज़ कर रहा हो। और एक और वहाँ पर पोस्टर है जो कि है वर्ल्ड मैप, लेकिन वो वर्ल्ड मैप किसी काम का नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए तो वो मैप कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि उनकी दुनिया तो खिड़की के बाहर तक ही सीमित है। दुनिया क्या होती है वो तो उन्हें पता ही नहीं। सभी बच्चे बड़े मतलब उस लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करके जीना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वहीं पीछे बैठा एक लड़का जो है वो अभी उसकी आंखों में कोई उम्मीद या कोई सपने हैं, क्योंकि उसे क्लास में इंटरेस्ट नहीं, खिड़की के बाहर खेल रही गिलहरियों में है। जो स्क्विरल्स बाहर खेल रही हैं वो उन्हें देख रहा है। शायद वो सपने देखना जानता है, उसकी आंखों में अभी सपने हैं जो बाहर की दुनिया को जीने के लिए उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसीलिए शायद उनकी दुनिया वो मैप नहीं बल्कि एक्सप्लोर करने के लिए वो गिलहरी हो सकती है जो खिड़की के बाहर है। यूँ पोएट बताते हैं कि कितना अनजस्टिस किया गया है कि वहीं अच्छे बच्चों मतलब अच्छे पेरेंट्स के बच्चों की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है, वहीं ये स्लम एरियाज़ में पैदा होने वाले बच्चे कितने अनलकी होते हैं, क्योंकि इन्हें लाइफ की बेसिक चीज़ों को भी इंजॉय करने नहीं मिलता। वहीं पोएट बताते हैं कि शेक्सपियर शायद उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित नहीं हुए। वो शायद शेक्सपियर को इतना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि शेक्सपियर हमेशा अपनी पोएट्रीज में बताते यू विल बी लव्ड, यानी कि आपको लोग प्यार करेंगे। लेकिन इन बच्चों को तो ऐसा लगता है मानो जैसे इनसे कोई प्यार करता ही ना हो। ये सबसे अनवांटेड बच्चे हैं जो किसी को भी पसंद नहीं आएंगे। तो यहीं पोएट गवर्नर्स और अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करते हुए कहते हैं कि उन्हें इनकी दुनिया को बदलना चाहिए, उन्हें भी जीने का, उन्हें भी स्टैंड लेने का मौका देना चाहिए, ताकि कोई बच्चा यहाँ से भूख की वजह से या परेशानी की वजह से चोरी ना करे या कोई बुरा काम ना करे। क्योंकि अभी जो उनके हालात हैं उनमें तो मानो उनके कपड़े भी उनकी चमड़ी के अंदर की हड्डियों को दर्शा सकते हैं, उतनी कम न्यूट्रिशंस उनको मिल रहे हैं और वो बहुत कमज़ोर हैं। यहीं पर पोएट ने एक लाइन लिखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द वाइट एंड द ग्रीन लिव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ इन द सन, यानी कि सफ़ेद हो या हरा हर रंग आपका होगा सिर्फ और सिर्फ अगर आप सूरज की बोली बोलना जानोगे, यानी आप हिम्मत करना जानोगे। इसी तरह से वो अथॉरिटीज़ और उनके बीच के अनइक्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं।